Hello children, this is Poonam Bagga back again with chapter 2 Polynomials. Today we are going to complete this chapter. Up till now in this chapter we have learnt what are polynomials, then what is a zero of a polynomial and its geometrical meaning. Then we learnt about the relationship between the zeros and coefficients in case of different polynomials, and then we learnt about the division algorithm for polynomials. Today we are going to do exercise 2.4 based on the relationship between the zeros and coefficients in case of a cubic polynomial. The first question is, verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. Here we have been given this cubic polynomial and we have been given these three numbers. We have to verify that these three numbers are the zeros of this given cubic polynomial. हमें ये verify करना है कि ये तीनों numbers इस polynomial के zeros हैं. तो ये तो हुआ पहला काम जो हमें करना है. और second हमें क्या करना है? Verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो ये दो काम हम करेंगे. सबसे पहले हम ये prove करेंगे कि ये तीनों नंबर्स इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं और हम जानते हैं कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x फॉर विच द वैल्यू ऑफ दिस फुल पॉलिनोमियल कम्स आउट इक्वल टू ज़ीरो. ऐसी वैल्यू x की जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहते हैं. तो यहाँ हम एक एक करके ये तीनों नंबर्स इस पॉलिनोमियल में रखेंगे x की जगह और देखते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आती है या नहीं. वी टेक फर्स्ट 1/2. बिफोर दैट लेट अस गिव अ नेम टू दिस पॉलिनोमियल. 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2. हमने इसको एक नाम दे दिया है f ऑफ x और अब हम यहाँ पर x की जगह 1/2 रखते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है पॉलिनोमियल की. 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2. तो आप देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1/2 वैल्यू रख दी है. नेक्स्ट व्हाट? 2 इंटू 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8 प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4 minus 5/2 plus 2. We can cancel these two numbers dividing by 2 because there is a multiplication sign in between. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So 1/4 plus 1/4 minus 5/2 plus 2. We can take 4 as the LCM. 1 plus 1 minus 2 into 2 is 4. So 5 into 2 it's 10 here. And if we take 1 in the denominator, 1 into 4, 2 into 4, it will give us 8. So we have 2 minus 10 plus 8 upon 4. What is 2 minus 10? It's minus 8 plus 8 upon 4, 0 upon 4, and 0 divided by any number is equal to 0. And so what we see that when we replace x by 1/2, we are getting the value of the polynomial as 0. So therefore 1/2 is a zero of this polynomial. So we can clearly write this here. This implies 1/2 is a zero of f of x. Got it? Next we will take the number 1 and then we will take minus 2. So we take one more page. Let us write f of x once again. It's 2x³ plus x². Then minus 5x plus 2. And now we will replace x by 1. Okay, so we will find f of 1. Let us write 1 in place of x everywhere.
1 square minus 5 into 1 plus 2. What do we get? 2 into 1 cube is 1 and 2 ones are 2. Then 1 square is 1, 5 ones are 5 plus 2. It's 3 minus 5 plus 2. 3 minus 5, it's minus 2 plus 2 equal to 0. Yes. So we find that x equal to 1 is also a 0 of this polynomial. So we write here x equal to 1 is a 0 of f of x. ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है और अब हम x की क्या वैल्यू लें? थर्ड वैल्यू इज -2, you can see. So we replace x by -2 in this polynomial. 2 into -2 whole cube plus -2 whole square minus 5 into -2 plus 2. Let us solve it. 2 into -2 whole cube. Now since the power is an odd number, so minus will come there and 2 cube is 8. So it will be -8 plus since the power is an even number, minus minus plus हो जाएगा और 2 square is 4. Then minus minus plus 5 2s are 10 plus 2. It's minus 16, 2 into minus 8 plus add these three numbers, it is 16 and it is again equal to 0. Minus 16 plus 16, it's 0. And so what we find is that x equal to -2 is also a 0 of f of x. Got it? Now there are 3 zeros. Let us give them some name. Let the zeros be alpha, beta and gamma. Then alpha is equal to how much? You can see it's 1 by 2, 1 and -2. So we write alpha equal to 1 by 2, beta equal to 1 and gamma equal to -2. These are the 3 zeros of this cubic polynomial. What next? Now we will verify the relationship between these zeros and the coefficients. So first we need to write down the coefficients also. We take one more page. We will do the verification work. For this, we will compare the polynomial with the standard or the general form of a cubic polynomial. On comparing, f of x equal to 2x cube, what is it? Plus x square minus 5x plus 2 with ax cube plus bx square plus cx plus d. This is a general cubic polynomial. Then we get the coefficients. We get a equal to how much? You can see a is the coefficient of x cube और यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2. फिर b है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और यहाँ x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट विजिबल नहीं है. इसका मतलब क्या है? Yes, it's 1. So we take b equal to 1. Then c is the coefficient of x and what is the coefficient of x in the polynomial? Given polynomial it is -5. So c is equal to -5 and d is the constant term and here it is equal to 2. तो ये हो गए कोएफिशिएंट्स और जीरोस हम एक बार फिर से लिख लेते हैं. Zeros of f of x are alpha equal to 1 by 2, beta equal to 1 and gamma equal to -2. Let us see here 1 by 2, 1 and -2. That's what we have written. Now we will verify the relationship between these zeros and these coefficients. There are 3 relationships. First one is we find the sum of the zeros.
sum of the zeros equal to alpha plus beta plus gamma. 1 by 2 plus 1 plus minus 2. It is equal to 1 by 2. 1 minus 2, it will be minus 1, and now 1 minus this 2 will be multiplied by 1. 1 minus 2 upon 2, it is equal to minus 1 upon 2. ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. और अब एक बार हम माइनस बी अपॉन ए भी निकाल कर देखते हैं. माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इट्स 1, सो माइनस 1, और ए की वैल्यू है 2, minus 1 by 2, and yes, both are coming equal. So the first relationship, that is alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. It is now verified. This is the first relationship. Got it? Next we will take the second relationship. Second one, product of zeros taken 2 at a time. It will be alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. ठीक है, alpha is 1 by 2, beta is 1 plus beta is 1, gamma is minus 2 plus gamma is minus 2 and alpha is 1 by 2. Solve करते हैं. 1 by 2 into 1 will be 1 by 2. Then 1 into minus 2, it will be minus 2. And here we can cancel this 2 by 2 because there is a multiply sign in between. And we will get minus 1. Okay, this minus 1. Solve it. It is 1 by 2 minus 3. Again solve it. It will be equal to 1 by 2 minus 2 3s are 6. Now this will be the denominator on the whole 2, and this is equal to minus 5 by 2. So what we have done, we have found the sum of the zeros, sum of product of two zeros at a time. Okay. Next what we will do, c by a निकालते हैं. What is the value of c? Let us see. c is equal to minus 5 and a is 2. So we write here minus 5 by 2. And what do you find? Both the answers are equal. और इससे ये verify होता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a. ये हो गई हमारी सेकेंड रिलेशनशिप जो हमें वेरीफाई करनी थी. क्लियर? देन वी मूव ऑन टू द थर्ड रिलेशनशिप. और याद कीजिए कि उसमें हम क्या लेते थे? इन दैट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 zeros together. So we write product of zeros equal to alpha into beta into gamma. Alpha की वैल्यू है 1 by 2, beta is 1 and gamma is minus 2. Now there is a multiply sign, we can easily cancel 2 by 2 and we get the answer as minus 1. Next we find minus d upon a. Minus, what is the value of d? It is 2 and a is also 2. So we write here minus 2 upon 2 equal to minus 1. And again what we see? Both are coming equal. This means that the product of zeros alpha beta gamma is equal to minus d upon a. This is the third relationship that we were supposed to verify. In this way this first part is complete. Just for your recalling, let us recall that the 3 zeros 1 by 2, 1 and minus 2, अगर हम इनसे रिलेटेड ग्राफ के बारे में सोचें तो हमें क्या मिलेगा कि इस पॉलिनोमियल के 3 zeros होंगे और ये x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा इस पॉलिनोमियल का ग्राफ.
और वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे? 1/2, 0 पहला पॉइंट, 1, 0 सेकेंड पॉइंट एंड -2, 0 द थर्ड पॉइंट। और ये ज़ीरोज़ क्या है? ये पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ है जब हम x की जगह 1/2 या 1 या -2 रखते हैं। तो आप यहाँ पर ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली भी थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं तो वो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा और वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे? ये तीनों जो हमें ज़ीरोज़ से मिले हैं, इन तीनों ज़ीरोज़ से। ठीक है, तो ये बस आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए। वी टेक द नेक्स्ट पार्ट नाउ। दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस वन, and we have been given these 3 numbers. Again we have to first verify that these 3 numbers are the zeros of this given polynomial. तो अब इस polynomial को एक नाम देते हैं, इसको p of x नाम दे देते हैं। p of x equal to x cube minus 4x square plus 5x minus 2। ठीक है, और ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये दिए हुए नंबर्स इसके ज़ीरोज़ हैं? यहाँ x की जगह हम इनको एक एक करके रखेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये नंबर्स इसके ज़ीरोज़ हैं। तो रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 2 इन प्लेस ऑफ x, दिस 2, इट विल बी 2 क्यूब minus 4 into 2 square plus 5 into 2 minus 2. Now 2 cube is 8. Then minus 4 into 2 square is 4 plus 10 minus 2. 8 minus 4, 4 is 16 plus 10 minus 2. 8 minus 16 it's minus 8 and plus 10 minus 2 it's 8. And what is minus 8 plus 8? Yes, it's 0. और अब हम कह सकते हैं कि yes, x equal to 2 is a zero of p of x. ठीक है, ये पहला तो हमने प्रूव कर दिया, पहला नंबर इसका 0 है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे? p of 1। x की जगह अब हम 1 रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 क्यूब minus 4 into 1 square plus 5 into 1 minus 2. Let us solve it. 1 cube is 1 minus 1 square is 1, 4 ones are 4 plus 5 ones are 5 minus 2. What is 1 minus 4? It is minus 3. And what is 5 minus 2? It's plus 3. Minus 3 plus 3 it's 0 again. और इससे हम क्या कह सकते हैं कि x equal to 1 is a zero of the polynomial. और ये लास्ट नंबर जो दिया है ये भी 1 है, तो वो तो सेम ही बात हो गई, 1 रखने पर तो 0 आ ही रहा है, तो ये तीनों ही इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence 2, 1, 1 are the zeros of p of x। क्योंकि 1 रखने पर हमने देख लिया है आंसर 0 आ रहा है। और अब हम इनको नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? यस, अल्फा, बीटा एंड गामा। लेट द zeros be alpha, beta and gamma. Then this means that alpha is equal to 2, beta is equal to 1 and gamma is also equal to 1. तो हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया है, ये वेरीफाई कर दिया कि दिए हुए नंबर्स इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। अब अगला हमें क्या काम करना है? We have to verify the relationship between the zeros and the coefficients. इस वेरिफिकेशन के लिए हमें कोएफिशिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग p of x equal to
what is it? X cube minus 4x square, x cube minus 4x square plus 5x minus 2. Is it correct? Yes, it's correct. Now we will compare this polynomial with a general cubic polynomial, and it is ax cube plus bx square plus cx plus d. And then we get, after comparison, a is the coefficient of x cube, and here the coefficient of x cube it's 1, so the value of a is 1. Then b, ये है x square का कोएफिशिएंट और यहाँ पर x square के साथ है -4, और फिर c की वैल्यू, c is the coefficient of x and here the coefficient of x is 5, so c is equal to 5 and d is the constant and here it is equal to -2. ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये हो गए कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. और एक बार जीरोस फिर से लिख लेते हैं हम. Zeros of p of x are alpha equal to 2, beta equal to 1 and gamma also equal to 1. Now we will take the relationships one by one. First is sum of zeros. Alpha plus beta plus gamma. It's very easy. 2 plus 1 plus 1, it's 4. And next what we find? Minus b upon a. Minus, what is the value of b? You can see it's -4. तो एक माइनस तो फॉर्मूले का और एक माइनस b का खुद का. और a की वैल्यू आप देख सकते हैं it's 1. माइनस माइनस प्लस 4 and upon 1 it's 4 itself. Okay? And now the two values are coming equal. और इससे हम easily ये verify कर सकते हैं कि sum of the zeros alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. और ये है हमारी पहली रिलेशनशिप. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सेकेंड रिलेशनशिप. द सेकेंड वन, वी टेक प्रोडक्ट ऑफ zeros taken 2 at a time. And it is equal to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. If we put in the values of alpha beta gamma, 2 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 2, it is equal to 2 plus 1 plus 2 equal to 5. ठीक है, और अब हम निकालेंगे c upon a. What is the value of c? It's 5 and a is 1. So it's 5 upon 1 and it is equal to 5. और आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं. So this implies that alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a, where c is the coefficient of x and a is the coefficient of x cube. Okay, you can see c is the coefficient of x and a is the coefficient of x cube. ठीक है, next we take on the third relationship, product of zeros. This time we will take all the zeros together, all the three zeros, alpha, beta and gamma. It is equal to 2 into 1 into 1 equal to 2. That's very simple. और अब हम निकालेंगे minus d upon a. Minus, what is the value of d? You can see it is -2 and a is again 1. So we write here -2 upon 1. It is equal to 2. And again both are coming equal. So we can easily say that alpha beta gamma is equal to minus d upon a.
and this is the third relationship that we were supposed to verify. Got it? So this was your first question. We take the next one. Find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively. यहाँ ये जो 3 नंबर्स दिए हैं ये क्या क्या हैं? पहला दिया है सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है 2, फिर हमें दिया है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम वो है -7, और फिर हमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ जो है -14. First of all, let us give the names to the zeros. Let the zeros of the polynomial be alpha, beta and gamma. यहाँ हमें ये तीनों जो नंबर्स दिए हैं ज़ीरोज़ के बीच में जो रिलेशंस दिए हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, और फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये तो दिया है और हमसे पूछा क्या है? हमें निकालना है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ इस तरह से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो हमने सबसे पहले ज़ीरोज़ को ही नाम दे दिया अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन it has been given that alpha plus beta plus gamma it's equal to 2. ठीक है, ये दिया है सम ऑफ द ज़ीरोज़. फिर हमें दिया है 2 ज़ीरोज़ टेकन टुगेदर, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, दिस इज़ इक्वल टू -7. ये देखिए आप. और फिर हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -14. ये थर्ड नंबर. ठीक है, ये समझ में आया आपको? इनको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिलेशनशिप. अब इन तीनों की मदद से हम उस पॉलिनोमियल को निकालेंगे जिसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. ओके, व्हाट नेक्स्ट वी विल डू? The required polynomial, it can be given as p of x. अब आप देखिए हमारे पास 3 ज़ीरोज़ है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, और हमें पॉलिनोमियल निकालना है. तो हमने बात की थी कि अगर हमारे पास ज़ीरो दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम ज़ीरोज़ की मदद से इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे. और फैक्टर्स कैसे बनते हैं? इस ज़ीरो को अगर हम वेरिएबल में से माइनस कर दें तो वो हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर. तो अब क्योंकि अल्फ़ा, बीटा, गामा ज़ीरोज़ हैं तो फैक्टर्स क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा. बात आई समझ में? और क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो 3 फैक्टर्स होंगे. आप देखिए तीनों ज़ीरोज़ को हमने वेरिएबल x में से माइनस कर दिया और ये तीनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ही तो ये पॉलिनोमियल बनेगा. तो तीनों को हमने एक साथ लिख दिया है. अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. पहले इन फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा x². लेट अस मेक अ ब्रैकेट इन दिस वे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा. ये फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, एंड इन द एंड वी हैव x माइनस गामा. ये कैसे आया हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में. अब यहाँ से ये x इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा. पहले ये मल्टीप्लाई होगा x² से, बन गया x³. फिर अब ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x² x इंटू x² बन जाएगा. और अब ये x अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा बीटा x बन जाएगा. ये समझ में आए तीनों स्टेप्स? इस x को हमने तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिया है. अब इस गामा को हम मल्टीप्लाई करेंगे
तीनों ही टर्म्स से। इसके लिए पहले माइनस गामा को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो बन जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये माइनस गामा सेंटर टर्म से मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स। देखिए आप, और फिर ये गामा माइनस गामा अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा और हमें मिलेगा माइनस अल्फा बीटा गामा। इस तरह से हमने ये टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लाइक टर्म्स उनको आपस में एडजस्ट करेंगे। लाइक टर्म्स मतलब जिसमें वेरिएबल्स सेम हो। आप इधर देखिए, ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक साथ मर्ज होंगे। और यहाँ पर देखिए आप, ये एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली टर्म है, ये आपस में मर्ज होंगे। जो भी सॉल्व करेंगे प्लस माइनस वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गई एक्स क्यूब माइनस, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ से माइनस गामा है, तो माइनस तो हम कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यहाँ से और गामा यहाँ से आ जाएगा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। जो इसका माइनस था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर इसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस गामा हो गया है, ठीक है। एंड देन वी हैव एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स वाली टर्म्स को एडजस्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास है अल्फा बीटा, यहाँ हमें मिलेगा अल्फा इंटू गामा। अगर हम ये ब्रैकेट ओपन कर लें तो हमें क्या मिलने वाला है, अल्फा इंटू गामा प्लस ये बीटा इंटू गामा। हमने ये ब्रैकेट ओपन कर लिया है और साथ में है एक्स। आप देखिए इसके पास भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया है। और लास्ट में हमारे पास बचेगा माइनस अल्फा बीटा गामा। अब आप देखिए ये तीनों वही तो रिलेशंस हैं जो अभी हमने बात की थी, सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। वही एक्सप्रेशन बन गया। आप देखिए ये तीनों एक्सप्रेशंस वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब उन इक्वेशंस से हम इन तीनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में रख दें तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो हमसे पूछा है। सो वी राइट एक्स क्यूब माइनस what is the value of alpha plus beta plus gamma? It is 2 from this relationship, first one. So we write here 2x square, then plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, it is minus 7 from this second relationship. तो इसकी जगह आप देखिए यही तो है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसकी जगह हम -7x रख रहे हैं प्लस, और we have minus here, so we write here minus alpha beta gamma की वैल्यू रख लेते हैं। alpha beta gamma is -14, तो यहाँ रखेंगे हम -14। सिंपल। बस अब ये ब्रैकेट्स को थोड़ा सा खोल लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। This is the required polynomial p of x and this is the final answer. बात आई समझ में? हमने क्या किया, हमें यहाँ पर ज़ीरोज़ का सम दिया हुआ था, दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का सम दिया हुआ था और तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट दिया हुआ था। हमने ज़ीरोज़ को नाम दे दिया अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब इन ज़ीरोज़ से हमने इनके पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाए, x में से माइनस करके। इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट से ही हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। और अब हमने इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया फैक्टर्स का, उससे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। इस एक्सप्रेशन में हमने उन तीन रिलेशन से वैल्यूज़ रखने पर हमें हमारा पॉलिनोमियल मिल गया। गॉट इट? देन वी टेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b। अब हमें तीनों ज़ीरोज़ फिर से दिए हुए हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी, और ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं और हमें निकालना है a एंड b। ठीक है, तो पहले तो हम ज़ीरोज़ को कुछ नाम देते हैं, धीरे धीरे पहुँचेंगे कि कैसे सॉल्व करना चाहिए।
let the zeros be alpha, beta and gamma. Then alpha is equal to a minus b, beta is equal to a, simply a, and gamma is equal to a plus b. ये तीनों जीरोस को हमने नाम दे दिया. अब क्योंकि हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है तो यहाँ हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इन जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच की रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए हमें a और b की वैल्यू निकालनी चाहिए. तो पहले हमें उसके लिए कोएफिशिएंट्स चाहिए होंगे, तो वो भी हम लिख लेते हैं. ऑन कंपेयरिंग दिस पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 with a general cubic polynomial. Now since a and b, small a and small b are there in the question itself given, so we can take capital letters. Let us take as ax cube plus bx square plus cx plus d. We get what we are finding, the coefficients of this given polynomial. वो ढूंढ रहे हैं हम. तो हम इस पॉलिनोमियल को इस जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो हमें कोएफिशिएंट्स क्या मिल रहे हैं, a तो मिल रहा है 1, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b की वैल्यू हो गई यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो आप देख सकते हैं -3, c की वैल्यू आप देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट वो है 1 और d कांस्टेंट है वो भी है 1. हमने कैपिटल लेटर्स इसलिए लिए हैं क्योंकि स्मॉल लेटर्स a एंड b क्वेश्चन में भी इस फॉर्म में जीरोस में दिए हुए हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स ले लिए हैं कोएफिशिएंट्स के लिए. ठीक है, अब ये कोएफिशिएंट्स हैं और ये जीरोस हैं, इनके रिलेशंस को यूज़ करते हुए हम a और b की वैल्यू निकालेंगे. अब 3 रिलेशन होते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट्स के. पहला होता है सम ऑफ द जीरोस. तो अगर हम इन तीनों जीरोस का सम फाइंड आउट करें तो आप देखिए ये -b और +b कैंसिल हो सकते हैं और हमें a की वैल्यू मिल सकती है. तो पहला रिलेशन हमारे काम का है, लेट अस यूज इट. Sum of the zeros, it is equal to -b upon a. ये रिलेशनशिप हमें पता है. ठीक है, या कह लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन a. अब अल्फा की वैल्यू आप देखिए क्या है, a माइनस b, फिर a और a प्लस b, इनको यहाँ लिखते हैं a माइनस b, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a प्लस b. और यहाँ से माइनस b क्या होगा, देखिए b की वैल्यू है -3, सो वी राइट हियर माइनस ऑफ -3, और a की वैल्यू आप देखिए 1 है तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे 1. ठीक है, और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा. सॉल्व करते हैं, -b और +b कैंसिल हो जाएंगे और ये कितने a बच गए हमारे पास, 1 2 3. सो 3a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1. सो a इज इक्वल टू 1. ये आ गई हमारी पहली वैल्यू जो हमसे पूछी थी. ठीक है, यही तो पूछा था a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो आ गई. अब b की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई और रिलेशनशिप यूज़ करनी पड़ेगी जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में. तो अब हमारे पास एक तो रिलेशनशिप होती है, दो जीरोस का प्रोडक्ट लेकर अगर हम ऐड करें, और अगर हम हमारे जीरोस ये हैं तीनों का प्रोडक्ट करें तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी दिखाई दे रहा है. और इसकी एक आइडेंटिटी होती है जो हमें पता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी हमारा काम आसान करती है. तो अब हमें जो अगली रिलेशनशिप यूज़ करनी चाहिए वो है तीनों जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहिए, और उससे देखते हैं हमें b की वैल्यू मिलती है या नहीं. सो वी टेक द रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये किसके इक्वल होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज़ इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. वी टेक कैपिटल D in this case, minus D upon A.
और अल्फा बीटा गामा, अल्फा इज a minus b, beta is a and gamma is a plus b equal to minus, what is the value of d? It's 1 and a is also 1, so it will be minus 1 upon 1, that is minus 1. ठीक है. Now a minus b into a plus b, it's a square minus b square और a तो ऐसे ही रहेगा equal to minus 1. अब यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता है 1 आ गई है, तो a की जगह 1 रिप्लेस करते हैं. इट विल बी 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू माइनस 1, टेकिंग a equal to 1 in this expression. Okay, what next? 1 minus b square equal to minus 1, ये बचा हमारे पास. अब इस b स्क्वायर को तो हम RHS में ट्रांसपोज करते हैं और इस माइनस 1 को हम LHS में ट्रांसपोज करते हैं, जिससे कि ईजी हो जाए हमारा काम. तो 1 तो यही रहेगा, ये प्लस 1 हो गया इधर आके और b स्क्वायर उधर चला गया. दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और b कैसे आएगा? स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं? वी टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर विल बी b and here we will get square root 2 plus minus root 2, और इस तरह से b की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2. हमें पता है रूट 2 इंटू रूट 2 इज ऑल्सो 2, माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 इज ऑल्सो 2. इट इज 2 ऑल्सो, माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 ये भी तो 2 होता है. तो आप देखेंगे कि 2 के स्क्वायर रूट में प्लस रूट 2 भी आएगा और माइनस रूट 2 भी. तो ये हो गई b की दो वैल्यूज, और इससे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं. यहाँ इसको हम नोट कर लें. हेंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2. This is the final answer. Got it? Then we take the third question. Fourth question, in fact, if two zeros of the polynomial this are 2 plus minus root 3, find other zeros. हमारे पास ये एक polynomial है और इसके दो zeros दिए हुए हैं. एक तो हो गया 2 plus root 3 और दूसरा हो गया 2 minus root 3. ये दो zeros हमें दिए हुए हैं और other zeros निकालने हैं. कितने जीरोस पॉसिबल हैं इस पॉलिनोमियल की? आप देखेंगे इसकी डिग्री है 4, यहाँ पर देखिए, तो 4 जीरोस आर पॉसिबल. उन 4 जीरोस में से ये दो दिए हुए हैं और बाकी के दो हमको निकालने हैं. सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को एक नाम देते हैं. लेट p ऑफ x इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वेयर प्लस 138x माइनस 35. ठीक है. अब ये दो जीरोस जो दिए हुए हैं, हमारा पहला काम क्या होता है जीरोस से? इनसे हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाते हैं. और कैसे बनाते हैं ज़रा आप सोचिए और बताइए. जी हाँ, हम इन जीरोस को वेरिएबल में से माइनस करके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 2 minus root 3 and 2 plus root 3 are the zeros of p of x. Therefore, x minus 2 minus root 3 and x माइनस 2 प्लस रूट 3. देखिए हमने दोनों जीरोस को x में से माइनस कर दिया. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x. क्लियर? हमने इन जीरो से दो फैक्टर्स बना लिए पॉलिनोमियल के, और वो कैसे बनाए? x में से माइनस करके. अब इनको अगर हम कंबाइन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो कॉम्बिनेशन में हमें एक फैक्टर मिल जाएगा इस पॉलिनोमियल का. तो हम मल्टीप्लाई करते हैं.
We now multiply these two factors. x माइनस, अब आप देखिए ये माइनस जो है ब्रैकेट को खोल लेंगे हम और माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस √3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया यहाँ पर, और ये बन जाएगा x माइनस 2 और ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस √3। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अगर इन पर फोकस करें, ये x माइनस 2 प्लस √3, x माइनस 2 माइनस √3, ये कुछ इस तरह का फॉर्म हो गया, a प्लस b, a माइनस b, ये इस फॉर्म में हो गया। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आइडेंटिटी से मिलता है हमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब हम इजीली लिख सकते हैं इसको इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको भी हमें सेकेंड आइडेंटिटी से ओपन करना आना चाहिए। कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट नंबर स्क्वायर, यहाँ पर सेकेंड नंबर स्क्वायर, और बीच में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। I hope it is very much known to you because it was in your class 8th also, class 9th also. Then minus what is √3 square? It's 3. So we have x square minus 4x plus 4 minus 3. It's plus 1. 2 square will be 4. 4 minus 3 it's 1. तो ये हो गया एक प्रोडक्ट इन दोनों फैक्टर्स का, और ये एक फैक्टर हो जाएगा दिए हुए पॉलिनोमियल p of x का। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज अ फैक्टर ऑफ p of x। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसको एक बार फिर से आप विजुअलाइज कीजिए जैसे हम पहले भी करते आए हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 4, और इसका मतलब उसके 4 लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से एक तो हो गया x माइनस 2 प्लस √3, देखिए यहाँ से बनकर आया ये, और एक हो गया x माइनस 2 माइनस √3। ये दो फैक्टर्स मिले हमें उन दो ज़ीरोज़ की मदद से जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और बाकी के ये दो फैक्टर्स हमको निकालने हैं। और ये कैसे निकलेंगे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अभी हमने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया, और ये दो फैक्टर्स अभी भी हमें नहीं पता जिनसे हमें बचे हुए ज़ीरोज़ मिलेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, अगर हम p of x में इस फैक्टर का डिवीजन कर दें x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का, तो हमें ये बचे हुए फैक्टर्स मिल जाएंगे, और जब हम इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो रिमेनिंग ज़ीरोज़ हमें मिल जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो अब हम क्या करेंगे, p of x में इसका डिवीजन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। वी टेक ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर इट। फर्स्ट वी रिमूव इट, let us write down the statement. To find the remaining factors of p of x, we divide p of x by x square minus 4x plus 1. Got it? Now we will divide it. Let us write down on the next page. For this we need p of x. What is the value of p of x? For this I need to bring it somewhat down. It is this one. X raised to power 4 minus 6x cube, then we have minus 26x square plus 138x minus 35. This is the polynomial p of x, and we now divide it by x square minus 4x plus 1. Is it the same?
Yes, x square minus 4x plus 1. From here you can see. Now let us divide the two expressions. First of all look here, x square and x raised to power 4 हाईएस्ट पावर के जो टर्म्स हैं, तो हमें x स्क्वायर को x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे x रेज टू पावर 4 मिले. x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो x रेज टू पावर 4, फिर इसी x स्क्वायर को माइनस 4x से किया तो माइनस 4x क्यूब ऑन मल्टीप्लिकेशन, एंड x स्क्वायर इंटू 1 इट्स प्लस 1x स्क्वायर. आप देखेंगे लाइक टर्म्स ऊपर नीचे लिखी है हमने. वी नाउ चेंज द साइन फॉर सब्ट्रैक्शन. x raised to power 4 minus x raised to power 4 will be cancelled. Minus 6 plus 4, it's minus 2 x cube. Minus 26 minus 1, it will be minus 27x square plus 138x minus 35. ठीक है, अब हम किस पर ध्यान देंगे? इस एक्सप्रेशन पे और यहाँ से इस पर. माइनस 2 चाहिए हमें और x क्यूब लाने के लिए एक x और चाहिए होगा, तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे. वी मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x. माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी माइनस 2x क्यूब. अब इसी को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर. ठीक है, और माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x. नेक्स्ट अगेन चेंज द साइन. ये प्लस माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसल्ड. माइनस 27 माइनस 8, 8 and 7, it will be minus 35x square. It will be plus 140x minus 35. ठीक है, इसके बाद हमारे पास x स्क्वायर तो है ही, माइनस 35 और लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 35 से. इससे मिलेगा माइनस 35x स्क्वायर. 35 इंटू 4, what will it be? माइनस माइनस प्लस 4 5 is 20, it will be 140x, and then multiplied by 1, it will be minus 35. माइनस 35 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 मिलेगा. अगेन चेंज द साइन. इट विल बी प्लस माइनस प्लस. It will be cancelled, it will be cancelled, it will be cancelled, and the remainder is 0. और ये 0 आना चाहिए क्योंकि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है. अभी हमने देखा था, देखिए आप, कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए और वो आ रहा है, तो हम सही चल रहे हैं. नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिदम, by division algorithm, we can write p of x equal to, the first factor was x square minus 4x plus 1, which we got after multiplying the two separate factors. हमें ये फैक्टर एक मिल गया था और इसके बाद अगला फैक्टर हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35. यहाँ से आप देखिए डिवाइड करने पे मिला. इसको आगे और ब्रेकअप कर सकते हैं. कैसे ब्रेकअप करेंगे हम? 35 के ऐसे फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, तो हमें पता है 7 5 इज 35. 35 के फैक्टर्स 7 इंटू 5, और ये माइनस 35 है तो इन दोनों में से एक नंबर माइनस होना चाहिए. यहाँ पर माइनस 2 है, इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस का होगा. सो माइनस 7 इंटू 5. तो अब हमारे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस 7 x प्लस 5. ये दो फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के. ये एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, उसके ये दो फैक्टर्स हो गए. अब हमें रिमेनिंग ज़ीरोज़ चाहिए, तो अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर दें तो रिमेनिंग ज़ीरोज़ हमें मिल जाएंगे. तो आगे हम लिख सकते हैं टू फाइंड द रिमेनिंग ज़ीरोज़,
we take x square minus 2x minus 35 equal to x minus 7 x plus 5 equal to 0. This means either x minus 7 is 0 or x plus 5 is equal to 0. This means either x is equal to 7 or x is equal to minus 5. So the other zeros are 7 and minus 5. Therefore, the other zeros are 7 and minus 5. Okay, 2 zeros were given and these are the remaining 2 zeros. Got it? It's very easy and we have done questions similar to this one. Next we have one more question. If the polynomial this one is divided by another polynomial this one, then the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. हमारे पास ये एक polynomial है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से और रिमाइंडर हमें दिया है k और a की वैल्यू निकालनी है. तो डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कैसे काम करते हैं. First of all, we take this polynomial. Let us take one more page for the division. X raised to power 4 minus 6x cube. X raised to power 4 minus 6x cube. Then we have plus 16x square minus 25x and then we have plus 10. Plus 10. This we have to divide by x square minus 2x plus k. Is it correct? X square minus 2x plus k. Yes, we have written it rightly. Now we will divide the two expressions. किस पर फोकस करेंगे? x raised to power 4 पे और यहाँ x square पे. तो सबसे पहले हम x square से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 plus 2 we will get the power 4. So x square into x square it will be x raised to power 4. अब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से तो माइनस 2x क्यूब और अब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे k से तो हमें मिलेगा प्लस kx स्क्वायर. देखिए x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर की टर्म, x क्यूब के नीचे x क्यूब की टर्म, ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा. नाउ चेंज द साइन फॉर सब्ट्रैक्शन. This will be cancelled. Minus 6 plus 2 minus 4x cube plus 16 minus k. अब k की वैल्यू तो हमें नहीं पता है तो 16 minus k x square इस तरह से लिखना पड़ेगा. और आगे हमारे पास है minus 25x plus 10. तो हमने क्या किया, k की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम पूरा लिखेंगे 16 minus k x square. हमने कॉमन ले लिया दोनों का जो साथ में वेरिएबल है. ठीक है. नेक्स्ट अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक तो हमें माइनस 4 लाना है तो माइनस 4 से, फिर x क्यूब लाना है, x स्क्वायर है तो एक x और चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 4x. माइनस 4x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस 4x क्यूब, फिर माइनस 4x से माइनस 2x को किया माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 x स्क्वायर. ठीक है. और फिर माइनस 4x को प्लस k से करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 4kx. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट? चेंज द साइन. प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गए. यहाँ क्या बचेगा? 16 माइनस k और यहाँ से माइनस 8 x स्क्वायर. समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ से क्या मिलेगा हमें? प्लस माइनस 25 प्लस 4k, ये दोनों x और आगे प्लस 10 आएगा. हमने क्या किया? 16 माइनस k तो ऊपर से और नीचे माइनस 8. हमें पूरा लिखना पड़ रहा है क्योंकि k की वैल्यू हमें अननोन है. अगर k पता होता तब तो हम सीधे कैलकुलेट कर लेते और आंसर फाइनल आंसर लिखते. लेकिन क्योंकि k अननोन है तो 16 माइनस k और यहाँ से माइनस 8 आ गया और दोनों में x स्क्वायर है वेरिएबल जो साथ में रहेगा x की पावर 2 और यहाँ से हमने प्लस ले लिया और ये हो गया माइनस 25 और ये प्लस 4k. साइन चेंज होने के बाद वो लिख लिया है और फिर वेरिएबल x और इधर से हमने प्लस 10 कॉपी कर लिया. ठीक.
इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 16 माइनस 8 इट्स 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली ही हम यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आया आपको ये कैसे आया? अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही, ये रहा। 8 माइनस के की ज़रूरत है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के से। इससे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। इस 8 माइनस के को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2 8 माइनस के एक्स। तीनों ले लिए हमने, प्लस और माइनस, माइनस आ गया 2 इंटू 8 माइनस के और साथ में x। अब प्लस 8 माइनस के को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा k इंटू 8 माइनस के। हमने इस 8 माइनस के को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। आप खुद भी साथ साथ करते रहिए और देखते जाइए कि कहाँ सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, बिल्कुल चेक करते जाइए साथ साथ, आपको समझ में भी आता जाएगा। फिर ऐसे देखने से समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद करेंगे नहीं, खुद से करेंगे तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। सो कीप ऑन डूइंग अलोंग विद मी। ये साइन चेंज हो गया, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। दिस विल बी कैंसल्ड, सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी, साइन डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखिए क्या बचेगा, ऊपर है -25 प्लस 4k और नीचे क्या है प्लस 2 इंटू 8 माइनस के। ये पूरा कोएफिशिएंट हो गया x का, ऊपर से ले लिया -25 प्लस 4k और नीचे ये 2 है, +2 हो गया। अब आप देखिए ये +2 हो गया, +2 इंटू 8 माइनस के और साथ में x, और यहाँ से हमें मिलेगा 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के। ये हो गया फाइनल रिमाइंडर, ठीक है। और ये रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है, देखिए आप, x प्लस ए। तो हम इस रिमाइंडर को x प्लस ए के इक्वल रख के k और a की वैल्यू निकालेंगे। देखिए करते हैं हम, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, वी टेक द नेक्स्ट पेज और लेट अस सिंप्लीफाई हियर इटसेल्फ सो दैट वी कैन इजीली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -25 प्लस 4k प्लस 2 8 16 माइनस 2k इंटू x प्लस 10 माइनस 8k, ये हो जाएगा आपका 8k, k से मल्टीप्लाई किया 8k और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई फर्दर, -25 प्लस 16 it will be 15 minus 6 it's 9 minus 9 and 4k minus 2k it's plus 2k। बड़ा नंबर प्लस का है और साथ में आ गया x और यहाँ हमें मिलेगा प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ठीक है। ये हो गया फाइनल रिमाइंडर। और अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये रिमाइंडर किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन remainder is equal to, let us see here, it's -9 plus 2k x -9 plus 2k into x plus it's k square minus 8k plus 10. You can see it's k square minus 8k plus 10. This remainder is given equal to x plus a. यही दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और उससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे उससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स
on both sides, we get, what do we get? देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है 1, और यहाँ से x का कोएफिशिएंट है ये -9 + 2k, इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड इधर से कांस्टेंट क्या है a, और यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट है k² - 8k + 10 इज इक्वल टू a। तो पहले हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पर रखने से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व इट, माइनस इट विल बी 2k इक्वल टू 1 + 9, इट्स k इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू तो आ गई आपके पास 5, एक वैल्यू तो हमें मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट, k² - 8k + 10, it is equal to a. Let us replace this k by 5. 5² - 8 into 5 + 10 equal to a. Taking k equal to 5. Now what we get? 5² is 25 minus 40 plus 10, it's equal to a. Then 25 minus 40 plus 10, it's minus 30 equal to a. Minus 40 plus 10, it's minus 30, and it will be equal to -5. 25 minus 30, it's -5. इससे हमें मिल गई a की वैल्यू जो हमसे पूछी थी। In this way we can write the final answer, k is equal to 5 and a is equal to -5. So I hope it's very much clear. So this was your exercise 2.4, and with this chapter is also complete. I hope it is very much clear to you, all the concepts. Practice all these questions once again. We will soon meet again. Goodbye.